Hello students, welcome back to my YouTube channel. My today's topic is Introduction to Horticulture. Horticulture is a branch of agriculture which is concerned with cultivation of garden crops. The word horticulture comes from two Latin words, that is hort is equal to garden and cultura equal to cultivation. Thus, horticulture literally means garden cultivation और कल्टीवेशन ऑफ गार्डन क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर एक एग्रीकल्चर की ब्रांच है और दो लैटिन वर्ड से मिलकर बनी है। हॉर्टस का मतलब गार्डन होता है और कल्चर का मतलब कल्टीवेशन है। और इन अदर वर्ड, इफ़ वी डिफाइन द definition of horticulture, then it is like this. It is a branch of agriculture concerned with intensively cultured plants directly used by people for food, for medicine purpose, or for aesthetic gratification. Now we come on branches of horticulture. There are 6 to 7 branches in horticulture. First, pomology, on second, olariculture, then floriculture, plantation crop, spices and condiments, medicinal and aromatic plants. First, pomology. It is derived from two words, that is pomum means fruit and logos means discourse or study or science. So pomology is a study or cultivation of fruit crops. Example, मैंगो, सपोटा, गुआवा, ग्रेप्स, बनाना, पाइनएप्पल एट्सेट्रा। ये सारे जो फ्रूट्स होते हैं जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं वो हम लोग प्रोमोलॉजी में स्टडी करते हैं। फ्रूट की डेफिनेशन कुछ इस तरह है, इट इज़ अ डेवलप एंड मैच्योर्ड ओवरी विथ और विदाउट एसेसरी पार्ट्स एंड विच इज़ जनरली ईटन एज रॉ। Second, olariculture. Olaris means pot herbs and cultura means raising of plants. Thus, olariculture literally means pot herb cultivation. In the present days, it is broadly used to indicate the cultivation of vegetable. Olariculture क्या है? जिस एक ब्रांच है हॉर्टिकल्चर का जिसमें हम लोग वेजिटेबल की स्टडी करते हैं, लाइक ब्रिंजल हुआ, ओकरा, टोमेटो, पम्पकिन, कुकुम्बर एट्सेट्रा। अब देख लेते हैं वेजिटेबल की डेफिनेशन। इट इज़ एनी पार्ट ऑफ द हर्बेशियस प्लांट दैट इज़ जनरली यूज आफ्टर कुकिंग एज अ प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द मील। वेजिटेबल क्या है? कोई भी हर्बेशियस प्लांट का एक पार्ट है जिसको हम लोग कुकिंग में यूज़ करते हैं या फिर मील में खाते हैं एज इट इज़ रॉ और आफ्टर कुकिंग। थर्ड, फ्लोरिकल्चर. Floriculture means study of flower crop. Florus equal to flower and cultura equal to cultivation. Thus, floriculture means study of flower crops. Floriculture branch broadly divided into two categories, that is commercial floriculture and ornamental floriculture. In commercial floriculture, we deals with the cultivation of flower crops grown on commercial scale for profit, स्पेशली फॉर इनकम। कमर्शियल फ्लोरिकल्चर में क्या होता है, हम लोग फ्लावर को ग्रो करते हैं जिससे कि उससे हम कोई चीज़ कमा सकें, उसको कमर्शियली लार्ज स्केल पे सेल कर सकें। फॉर एग्जांपल रोज़, जैस्मिन, कार्नेशन, एस्टर एट्सेट्रा। और जो सेकंड ब्रांच है वो है ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर. It deals with the raising of flower crops for ornamental, pleasure and fashion purposes. For example, dahlia, zinnia, cosmos, hibiscus, etc. ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर क्या होता है? इसमें जो है फ्लावर को रेस किया जाता है सिर्फ ऑर्नामेंटल प्लेजर के लिए या फिर फैशन पर्पस के लिए. Now we come on plantation crops. Those crops
which are cultivated in an extensively scale in large contiguous areas owned and managed by an individual or a company, and those produces utilized only after processing. प्लांटेशन क्रॉप्स क्या है? वो क्रॉप्स होते हैं जिनको एक्सटेंसिवली लार्ज स्केल पे ग्रो किया जाता है और कंपनी मैनेज करती है, और उसके बाय प्रोडक्ट को ही जो है यूज़ किया जाता है। लाइक जैसे कॉफ़ी से कॉफ़ी पाउडर बनता है, टी से टी लीफ बनती है, रबड़ से लैटेक्स एक्सट्रैक्ट करके उसका रबड़ बनाया जाता है, कोकोनट से कोकोनट हस्क भी होता है, और कोकोनट मिल्क एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें प्लांटेशन क्रॉप्स की कैटेगरी में आती हैं। Spices and condiments. This branch deals with the cultivation crops whose produce is used mainly for seasoning and flavoring dishes. ये एक ऐसा ब्रांच है जिसमें क्रॉप के कल्टीवेशन किया जाता है जिसके प्रोड्यूस को सीजनिंग और डिशेस के फ्लेवर के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम लोग स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। स्पाइसेस आर दोज प्लांट्स द प्रोडक्ट्स ऑफ विच आर मेड यूज ऑफ एज फूड एजेंट टू एड अरोमा एंड फ्लेवर। फॉर एग्जाम्पल पेपर, कार्डमम, क्लोव, सिनेमम, ऑल स्पाइसेस एक्सेट्रा। स्पाइसेस क्या है? इसमें प्लांट के प्रोडक्ट को यूज़ किया जाता है अरोमा और फ्लेवर को ऐड करने के लिए डिशेस में। And condiments are those plants the products of which are made use of as food adjunct to add taste only. Condiments क्या है? प्लांट के प्रोडक्ट को यूज़ किया जाता है डिशेस में सिर्फ और सिर्फ टेस्ट को ऐड करने के लिए। स्पाइसेस में एरोमा एंड फ्लेवर को ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता था, और कॉन्डिमेंट को सिर्फ टेस्ट ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल टर्मरिक, जिंजर, रेड चिलीज, अनियन एट्सेट्रा। मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स. It deals with the cultivation of medicinal plants which provide drugs rich in secondary metabolites and are potential source of drugs, and aromatic crops which yield aroma. मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स में मेडिसिनल प्लांट की कल्टीवेशन किए जाते हैं जो कि रिच होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में एंड और पोटेंशियल सोर्स होते हैं किसके? ड्रग्स के। और एरोमेटिक क्रॉप्स जो है एरोमा ऐड करता है। नाउ वी कम ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर. Horticulture plays a vital role in our day-to-day life and also in increasing economic growth of our country. There are some points in which we discuss about importance of horticulture, and they are as follow. Like diet. Human body requires vitamins, mineral, protein, energy, etc. for its health. All these are supplied by horticultural crops. Fruits and vegetables being rich in vitamins and minerals are known as protective foods. ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होते हैं जो कि रिच होते हैं विटामिन्स में, मिनरल में, प्रोटीन में, एनर्जी में, कार्बोहाइड्रेट्स में। बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स रिच होते हैं प्रोटीन में, मिनरल में एट्सेट्रा, जो कि ह्यूमन बॉडी के हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और ये सारी चीज़ें हॉर्टिकल्चर क्रॉप प्रोवाइड करते हैं। और ऐसे फ्रूट और वेजिटेबल जो कि विटामिन और मिनरल में रिच होते हैं वो उनको जो है प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है। लाइक मैंगो एंड पपाया आर रिच इन विटामिन ए, बेल, पपाया, लीची आर रिच इन विटामिन B1 जिसको थायमिन भी कहते हैं, एंड कैश्यू नट, आलमंड, वॉलनट प्रोटीन रिच होते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है प्रोटीन रिच ड्राई फ्रूट्स कौन से हैं, तो उसका आंसर होता है कैश्यू नट, आलमंड एंड वॉलनट। आयरन रिच देख लें तो आयरन में करौंदा हो गया, डेट हो गया, कोरिएंडर लीव्स, ये सारे आयरन रिच होते हैं। इसलिए हॉर्टिकल्चर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइट में भी।
Second, income. Horticultural crop, especially fruits, vegetable and plantation crops are more and prolific yielder. These crops fetch more price in the market. हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो होते हैं, लाइक आप ले लीजिए फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल प्लांटेशन हो गया, ये सारी चीज़ें हेक्टेयर्स में इनकी कल्टीवेशन की जाती है और जो है ये मार्केट में अच्छे प्राइस में बिकते भी हैं। लाइक 1 हेक्टेयर फील्ड से एक इंसान को 10,000 to 1 लाख और ज़्यादा भी इनकम हो सकती है अगर अच्छे से कल्टीवेशन किया जाए तो। इसलिए इनकम में भी हॉर्टिकल्चर एक अपना अच्छा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स बीइंग डेलिकेट एंड टेंडर इन नेचर रिक्वायर्स utmost care in each and every aspect of cultivation, right from selection of site to harvesting, processing, marketing, and storage. And all such factors raise man days requirement and generate employment. हॉर्टिकल्चर क्रॉप जैसे कि हो गए फ्रूट, वेजिटेबल, इन सबको हेक्टेयर पर हेक्टेयर में लगाया जाता है एंड इनके साइड के सिलेक्शन से लेकर के स्टोरेज एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग तक बहुत सारे लेबर्स वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए हॉर्टिकल्चर सेक्टर एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एंड हॉर्टिकल्चर सेक्टर को लेबर इंटेंसिव सेक्टर भी कहा जाता है। एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट कर सकते हैं? कल्टीवेशन करके, फ्रूट्स की, वेजिटेबल की, फ्लावर्स की, प्लांट एंड स्पाइसेस की, F1 सीड प्रोडक्शन करके, नर्सरी रेजिंग। आज के दिनों में नर्सरी रेजिंग बहुत तेज़ी से चल रहा है। हर कोई अपने टेरेस में नर्सरी रेज कर रहा है या फिर किचन गार्डन में नर्सरी रेज कर रहा है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी जो है हॉर्टिकल्चर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। जैसे कि कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गया, AF हो गया, एग्रीकल्चर ऑफिसर हो गया, इन सब में हॉर्टिकल्चर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। Next one is industrial development. Horticulture plants or their product directly or indirectly constitute raw material for many industries. For example, tea, coffee, rubber, etc. form viable entities for industries. इन सारे प्लांट्स के प्रोडक्ट को और बाई प्रोडक्ट को इंडस्ट्री प्रोसेस करती है और फिर मार्केट में सेल किया जाता है उस प्रोडक्ट को। Entertainment. Roaming in the gardens, orchards, or places well planted with flower beds, etc., give mental peace to the persons. One enjoy fresh air and natural beauty, shades off tension making him fresh. हॉर्टिकल्चर एंटरटेनमेंट का काम कैसे करता है? जैसे हम लोग जब पार्क या गार्डन में वॉक पे जाते हैं तो वहाँ यही सारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स लाइक फ्लावरिंग क्रॉप हो गए, फ्लावर बेड हो गए, हम लोगों को एक मेंटल पीस देता है। इसलिए हॉर्टिकल्चर एंटरटेनमेंट में भी एक अच्छा रोल प्ले करता है। रिलीजियस वैल्यू। मेनी प्लांट्स पार्ट्स लाइक लीव्स, ट्विंग्स, फ्लावर्स, fruits, etc. possess religious value and also used in ceremonies. हॉर्टिकल्चर का रिलीजियस फंक्शन हो गया या फिर कोई अदर फंक्शन हो गया जैसे मैरिज या बर्थडे पार्टी एट्सेट्रा में बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। लाइक अगर किसी की शादी है तो फिर उसमें फ्लावर्स से डेकोरेशन किया जाता है या फिर प्रेयर के टाइम पे फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, इन सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। लीव्स ऑफ बेल, जिसको एगली मार्मिलोस भी कहते हैं बोटानिकली, आर फेमस फॉर ऑफरिंग टू द लॉर्ड शिवा। नेक्स्ट वन इज एस्थेटिक वैल्यू। अ यंग ग्रोइंग प्लांट गिव एन एस्थेटिक impression of the youth. Many rulers and emperors planted avenue with trees of fruits like mango, lychee, mahua, sapota, etc. in their gardens, having been enchanted by the aesthetic look of the trees.
हॉर्टिकल्चर एक इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है एस्थेटिक वैल्यू में, जैसे कि बहुत सारे पुराने राजा महाराजा थे, वो अपने गार्डन वगैरह में एस्थेटिक लुक के लिए, सुंदर दिखे, मेंटल पीस दे, इसलिए ये सारे प्लांट्स ग्रो करते थे. नेक्स्ट वन इज एक्सपोर्ट वैल्यू. अमंग फ्रेश फ्रूट्स, मैंगो एंड ग्रेप्स इन वेजिटेबल, onion and potato etc. constitute the bulk of the export market और बास्केट. एक्सपोर्ट में कैसे हॉर्टिकल्चर रोल प्ले करता है? हॉर्टिकल्चर के बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल हो गए जो कि आउट ऑफ द कंट्री एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जिससे इन रिटर्न हम लोगों को इनकम जनरेट होती है. Next one is medicinal value. The plants like stem, leaf, flowers, roots and even the fruits of the horticulture plants are used to make drugs, chemical, insecticide, germicide, etc. हॉर्टिकल्चर में ऐसे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट हैं जिनके स्टेम हो गया, लीफ हो गया, फ्लावर्स हो गया, या पूरा का पूरा प्लांट जो है मेडिसिनल प्रॉपर्टी रखता है. लाइक एग्जाम्पल, रोज़ वाटर आइस एलिमेंट्स की तरह काम करता है. पेपेन फ्रॉम पपाया जो होता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम के लिए यूज़ होता है. नीम वाटर स्किन इरिटेशन एंड एलर्जी के लिए यूज़ होता है. ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं जो कि मेडिसिनल प्रॉपर्टी रखते हैं. सो वी ऑल डन विद द इम्पोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर. नाउ वी कम ऑन स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर. Horticulture scope are as follows. Presently, the horticulture sector contributes around 31% of GDP. Horticulture sector जो है gross domestic product में 31% contribute करता है. And 38% of total export of agriculture commodities including horticulture crops from around 14% of area. India is the second largest producer in the world with 81.28 million tons of fruits, occupying an area of 6.98 million hectares. Economy of the farmers depend upon cultivation of fruits and vegetables. चूँकि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को हेक्टेयर पर हेक्टेयर में लगाया जाता है और ये लेबर इंटेंसिव है, इसलिए ये फार्मर को एम्प्लॉयमेंट भी देता है और इनकम भी जनरेट करता है. इसलिए हॉर्टिकल्चर का हमारे या इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है. Horticulture plays an important role in our day-to-day life, and there is also a large scope for peoples in horticulture sector. But there are some limitation in producing horticulture crops, and they are as follows. High initial investment, non-availability of quality planting materials, perishable nature. हॉर्टिकल्चर क्रॉप जैसे कि स्पेशली वेजिटेबल बहुत पेरिशेबल होते हैं नेचर में, इसलिए उनको स्टोर करना लॉन्ग टाइम तक बहुत टफ हो जाता है. सेकंड, लैक ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट एंड लॉन्ग जुवेनाइल पीरियड, लैक ऑफ प्रॉपर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़. फील्ड पे हार्वेस्टिंग के बाद उनको स्टोरेज तक ट्रांसपोर्ट करना और स्टोरेज में अच्छे से स्टोर करना सही टेम्परेचर पे, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन है. फैकल्टी मार्केटिंग सिस्टम, लो परचेजिंग पावर. Students, we done with all important definitions, several branches, importance and scope, and in last some limitation of horticulture. I think this is enough about introduction to horticulture. लास्ट में मैं आप लोगों से यही कहूँगी, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू.